like as a kid I have always been a very hardcore gamer. Thing that we don't understand, even I, that you don't need to study each and everything. You will learn. You will learn eventually as you work. What is your current views about the tech space right now? Like how about the hiring and why is it going so low? Everybody knew it, honestly, कि ये आएगा, but nobody knew कि ये कब जाएगा. And that's the thing right now that is happening. Where it all started, everything started from, of course, we all know US election. The first time I used ChatGPT, I remember how crazy it was for me. क्योंकि इस साल जो interviews हो रहे हैं, they're going very Okay. fine. Hello Himanshu, how are you doing? Hi, Aaron. I'm doing really great. So Welcome to this thanks a pod. lot. Yeah, sorry. No worries. Welcome to this podcast. Yeah. Yeah, thanks a lot for inviting me here. And I feel really nice talking to someone after so long. Been on a break from social media mostly. For sure. Even I like connecting with my seniors and creators as well. Yeah. Yeah. So let's begin with the podcast now. And my first question would be introduce yourself first of all. Like, who are you? What are you doing right now? All right. So, like you guys know it now that I'm Himanshu Sharma. Currently, I'm like pursuing my BTech from Delhi Technological University in mathematics and computation engineering. I am in my final year and about to have my last semester exams, and then I'll be free for some time, hopefully. Right now, preparing for placements, like given a few interviews, and hoping to get placed soon. But yeah, at the same time, like generated my interest in tech recently. Like I wasn't very inclined toward tech or DSA in my first 3 years of college. I was mostly creating content on YouTube, sometimes on Instagram, but for some time, for like 6, 7, 8 months this year, I have been offline mostly. I deactivated my Instagram and everything. Yeah, so that's it. That's how our life has been right now. But yeah, looking forward to creating content, trying to shift from what I usually used to make and try to create some content for me and people to like you know uh, enjoy. Yeah, that's Sure. the right word. There was one question I was going to ask you towards the end about your Instagram. Like, I was trying to search you on Instagram, but I couldn't find you over there. We'll go to that. We'll go to that. Sure. Okay. So we've opened a couple of parallels. So first we'll start with tech. So how did your interest develop in tech? You said you weren't interested in tech in the first initial 3 years of your college life. So what brought your inclination towards tech now? Honestly, the reason I wasn't inclined towards tech at all was because I never gave it time. So like not just tech, even still I enjoy problem solving more than development. But the reason I wasn't solving any problems in my first 3 years was I didn't give it enough time. But then the interest actually generated from, because I had nothing else to do and I knew placements are coming up and I had no clue about non-tech uh, consulting, analytical jobs and data science. So I just knew I had to study DSA once at least, to at least know if I like it or not. But when I started studying it, and I have to mention it here that I started studying from YouTube. I bought a few courses, but I didn't like the course scheme much. And I liked the Love Babbar Bhaiya's DSA playlist. So I started with that and I really enjoyed it. I kept going with the, lectures. I then I got introduced to Lead Code from those videos, and Lead Code is like as a kid I have always been a very hardcore gamer. So gaming addicts know that gaming keeps you like coming back to it because of the level ups, Yeah, the right? hook. Because of the new things that unlock, because of the ranks that upgrade. That gives you the adrenaline rush. So Lead Code does the same thing. When the numbers keep rising, you Yeah. feel good. The rank drops and the rating increases. That gives you a rush. You wait for every Sunday, every Saturday for the contest. So that's what I was liking.
I'm not going to say I'm very good at coding, but at least I enjoyed that part of problem solving. Then I started studying the web development course on Udemy by Angela Yu. A lot of us know about that. So I started studying that. I bought it for like 350 $400. It was on sale, so I just got it, and I started studying it. So I liked the way she taught, because her lectures were really concise, and they were completely, let's say, like her walkthrough was really good, for everything. I didn't had to worry that I had to know something before watching those lectures, so I was enjoying that part also. Then like while I had worked on my YouTube channel for some time, I had developed this, keen interest towards designing thumbnails, designing my channel, editing videos. So I guess web design was one thing that interested me. So I started learning Webflow too. So yeah, UI UX design, you mean? that's all about my tech journey till now. It's not something very different or something I had done way too much, because of course the time is like time matters, how much time you have given to it. If I had started late, of course I'll be a little late, but yeah, I'm still focusing on learning more skills right now. Right. You mentioned Angela Yu's course. So even I've learned web development from Angela Yu's course. Uh, I like her course in the way that she has videos, and then just after that she'll make us build the projects as well. Exactly. But the thing is, her course I feel is a bit outdated because she teaches the Web3 aspect as well, which is Yeah. not as much necessary if you're learning just web development and you're just beginning out in it. Yeah. So that thing seems Yeah. extra. And even in general, like I've seen how she uses the CRA and those methods to create React app and all those. I feel Yeah. they're Yeah. like not in industry standards right now. Yeah, Uh, industry is developing too fast. Yeah, exactly. That is one thing. So there was Yeah, this Cold Steel, this one course on same web development, and that I think I went through the contents of that. Like I find like initially when I did Angela, I did the basic HTML, CSS, JavaScript, and then React as well. So I've done till React. I haven't gone further. The backend part I haven't done. yeah. So I felt Cold Steel's uh, course was pretty better on web development. I must go through that. Now. Yeah, well, it's very brief. It's like very brief. Once you've done Cold Steel course, I don't think you would need anything else. It's so Cool. brief. That's really nice. I must go through it. Yeah, sure. Okay. And now, what? Oh, so what is your aim right now in the tech space? What is your current views about the tech space right now? Like, how about the hiring? Why is it going so low? Actually, it kind of surprises me a lot, and at the same time scares me too. How fast we are like emerging in tech. Every new week you have something better, that comes up and blows up your mind. First time I used ChatGPT, I remember how crazy it was for me. And then people are like creating such chatbots and so many web apps and everything using the API. It's ever emerging, and sometimes it scares me that how am I gonna be like such a fast learner? You need to be a fast learner in Yeah, this we time. need to keep up our pace. Yeah, exactly. If you are slow and you're taking time to complete that Angela U course, by the time you complete the course, you will have someone like who's completed like 4 or 5 Five courses steps of ahead them. of you. Yeah, exactly, working somewhere else. And the one thing that we don't understand, even I, that you don't need to study each and everything. You will learn eventually as you work and you like apply it on something, on projects or something. So yeah, tech is kind of scary, but of course has a lot of opportunities. But let's talk about this hiring part, जो कि अभी अपॉर्चुनिटी का सीन है. Everybody knew it honestly कि ये आएगा, but nobody knew कि ये कब जाएगा. And that's the thing right now that is happening. Where it all started, everything started from, of course we all know, US elections. Last time जो इतना ज़्यादा they printed the money, the $1 trillion, they passed out the money,
और इतना ज़्यादा डेट में आ गया था यूएस, एंड एवरी कंपनी हैड मनी, लाइक एवरी स्टार्टअप had funding, millions of dollars of funding, and then they didn't have the money to pay it back. So that created a bubble which burst. Then we saw wars, recession. Abhi US, UK, some parts of UK and these countries are in recession, but India में honestly recession नहीं है. But what companies are doing is they're taking advantage of this thing कि अभी recession का सीन है, तो जो कंपनीज लास्ट ईयर आ रही थी फ्रेशर्स को रिक्रूट करने के लिए एट लेट्स से 12 LPA, they're coming in at 6 or maybe 7 LPA this year. So yeah, that thing is a negative point for freshers, क्योंकि freshers के लिए you cannot expect कि उनको सब कुछ आता हो, even if a computer graduate is there from let's say DTU. So हमें कंप्यूटर में यार कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, नॉट एग्जैक्टली कंप्यूटर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो दैट्स वन थिंग आई वुड से कि दैट इज ओवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस साल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं दे आर गोइंग वेरी डीप, एंड आई हैव सीन really good people not getting hired this year. But then too we cannot blame them, because there are people that are getting hired. Those people are the same people जो हमारे साथ 4 साल कॉलेज पढ़ रहे हैं, and of course they've been laser focused towards this. So yeah, that's a thing. And then two companies are being a little opportunistic. They're coming for intern roles. They're not being specific कि वो PPO देंगे या नहीं देंगे. They're not being transparent about it कि कितना conversion rate होगा. You can see that in their talk. And uh, they are a little opportunistic, but I'm being hopeful as the year ends. Of course, a new year starts, and investors will have the money, and they will start investing. They'll start lending out money, and funding companies, and companies will be hiring back. Sometimes even I wonder, कि एक company है Google है, let's say they're working good. It's an MNC. Yeah, Everything is automated. Why would they hire thousands of people every year when they're not firing thousands of people every year? yeah, But then I thought they have to grow. Even if they're the biggest company in the world, they have not, their goal is to capture the whole market. They will never be able to do so. So in that case, they have to work every day, they have to grow every day, they have to hire new people every day, they have to start working on something new. So isliye I might have a chance of working at Google sometime in life. cool. All the very best to you for that. That's just my part of an optimistic approach. Sure, I mean that is the approach you should have in mind always. Exactly. Yeah. You mentioned AI, so like, would you extensively use AI in your daily life? I didn't even get to know when I got like completely like relied on it for so many things. Like a lot of people still think about using ChatGPT. I have to suggest कि इस काम के लिए ChatGPT use कर लो. But for me, it's like I don't use Google as a search engine anymore. I use ChatGPT more. So it's really handy. It gives you the exact like information. Sometimes you have to cross check it because it can be a little off, but you know it mostly कि कौन सी चीज ये गलत बता सकता है. If there's a general query, you can just Google it, and I mean you can just chat GPT it and you get the answer. And then too AI has been very helpful, जैसे presentations वगैरह बनाने के लिए completely, क्योंकि अगर कोई काम हमें पता है कि हम कर ही सकते हैं, इट्स जस्ट गोना टेक सम टाइम या फालतू का एफर्ट. देखो अगर कोई प्रेजेंटेशन है जो एक्चुअली मैं चाहता हूँ प्रेजेंट करना, तब तो आई वुड डेफिनेटली वांट कि मैं उसके बारे में पढ़ूं, अपने पॉइंट्स खुद लिखूं उस प्रेजेंटेशन के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा डालूं अपनी तरफ से. बट अगर कोई चीज मुझे पता है दैट इट्स अ फॉर्मेलिटी फॉर मी, तो फिर व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. Yeah. तो आई गेस आई विल लाइक आई एम नॉट अ पर्सन जो कि ऐसे नई टेक्नोलॉजी को यूज करने से थोड़ा रेजिस्ट करेगा. आई लव कोई भी अगर नया फीचर आता है किसी चीज में. सो एंड ये चीज मुझे इंटरेस्ट भी करती है टू स्टडी एआई या फिर एमएल इन द कमिंग टाइम. अभी आई एम नॉट स्टडीइंग राइट नाउ बिकॉज थोड़ा सा वो होता है कि अभी अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा फालतू में तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर दूंगा. एटलीस्ट Hmm. जो चीजें स्टार्ट करी हुई हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से वहां पर कंप्लीट करूं, और उसके बाद टाइम देकर इसको पढूं. Right. Do you think like the tech space is saturated or in any way like that?
Like if you take a web development or DSA, lead code for that matter, like I hear people saying even lead code is not enough. You should go to code forces. You should do competitive Yeah, programming. So do that's you? true. Yeah. Do you feel it's like Yeah. saturated at any level? I used to think like that, वही वाली thinking कि भाई companies क्यों hire करे हर साल thousands of people को, but saturation वाली चीज पता है मुझे क्यों नहीं लगती, because I have people around me that are doing good. They didn't start well, but eventually they are doing good, and they show me कि ये saturated क्यों नहीं है. I have a few people that work freelance. Okay, so they have clients every week. They have to reject clients because they don't have time, which are offering very like a very handsome And this is amount. in the web development space. Yeah, in the web development and web design space Right. specifically. Like one of those guys works in web development, one works completely in web design. Both are like making a very good like money, and both have clients every week. Both have to reject clients sometimes, and they have the same problem कि हमारे पास कोई ऐसे बंदे नहीं है exactly जो कि हमारे साथ मतलब हमारे जैसा काम कर लें और उनको हम काम kind of delegate कर दें and hire them. तो आई एंड दे टेल कि इट्स अगर तुम्हारे पास सही स्किल है ना, द स्किल वी थिंक अबाउट इज कि हमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, दैट इज द स्किल, दैट्स नॉट द स्किल. अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, the more important skill is to communicate, is to Yeah. get the offer. So cold emailing, getting the offer, getting people interested into working with you, तो वो वाली स्किल है. प्लस आप काम ठीक ठाक कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप टाइम के साथ काम तो करना सीख ही जाते हो. तो अगर ये दो चीजें अच्छी है ना, देन इट इज नॉट सैचुरेटेड. सैचुरेशन कहाँ पे है जो मुझे लगता है, एट कंपनी लेवल. Startups में there is no saturation. Startups come up like you have hundreds of startups coming up जो कि लोगों को hire करते ही रहते हैं, but then their requirement is people that can complete like jack of like they Jack of want all someone trades. Yeah. jack of all trades kind of चीज ही चाहिए होती है उन्हें, क्योंकि उन्हें Sure. कम पे पे ऐसा बंदा चाहिए जो यार उनका फ्रंट एंड भी संभाल ले, बैक एंड भी संभाल ले. इवेंचुअली भाई स्टार्टअप को अगर पैसा मिल जाता है, यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट देयर. बट और अगर किसी स्टार्टअप को फंडिंग मिली हुई है ऑलरेडी, तो वो लोग एमएनसी से ज्यादा ही पे करते हैं, बट वहां पे आपको काम बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है. तो इफ यू आर समवन जो कि वर्कोहॉलिक टाइप्स लोग होते हैं एंड दे लव, लाइक आई हैव सीन पीपल जिनको काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए बहुत सही है कि अर्ली एज में आप बहुत अच्छा कमा लोगे, उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. और आपको स्टार्टअप में ही होपफुली कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, मैनेजेरियल पोजीशन मिल जाए जहाँ इतना काम ना करना पड़े. बट या, तो स्टार्टअप्स में ऐसा सैचुरेशन जैसा सीन नहीं है, बट जैसे मास हायरिंग जो कंपनीज करती थी, इस साल जो नहीं कर रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल हायरिंग्स भी नहीं कर रही हैं. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सब ने हायरिंग्स बंद कर दी हैं. Oh my God. Okay. या, और लाइक इंडिया में तो इतना हाल भी नहीं है बुरा रिसेशन का, उन लोगों ने भी हायरिंग बिल्कुल इस साल करी नहीं है जो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस में ये लोग जाते थे, अब इस साल नहीं गए हैं. और इवन जो हमारे कॉलेजेस में भी अगर ये कंपनी आती थी, लाइक बच्चे अप्लाई नहीं करते थे ज्यादा, बट इस साल हमारे कॉलेज भी नहीं आए कि उनको मतलब नहीं चाहिए, बच्चे ज्यादा चाहिए ही नहीं. तो वो वाली चीज तो हो ही रही है. एंड आई थिंक पॉइंट भी है उसका कि आप भीड़ बहुत सारी नहीं इकट्ठी करके रख सकते. ऑफ कोर्स, या तो वो जो बच्चे हों जो आए, दे लाइक हैव अ डिफरेंट स्किल सेट, दे ऑफर यू अ डिफरेंट स्किल सेट, जो आप अगर कोई नया स्ट्रीम खोल रहे हो या फिर कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, उसमें हेल्प करे. लाइक रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड ही गॉट प्लेस्ड एट महिंद्रा. सो he got placed in the AI sector. Right. Like Mahindra, we all know, is working on something like they have this ad coming up in 2025. They don't tell what it is, but it's something related to AI. Right. And there's this Oculus kind of VR. So he's working on that thing, and he's getting very good. Mahindra, हमारे college आई थी, it offered like 3.5 lakh, 5.5 lakh, something like that, and he got a 15 CTC, 15 Okay. CTC. Okay. So Tech Mahindra is offering 5.5, Mahindra is offering 15. Uh, So that was because of his particular skill set कि उसको exactly. AI वगैरह आता Right. है, उसने उसमें काम किया है. They didn't want to hire masses and you know make them work like jobs जो कि आप AI से भी करा सकते हो. So Right. वही वाली चीज थी. In this case, they wanted like specialized skill.
Exactly. Right. Okay. So, you said you're learning DSA right now. So, like, what are some steps that a beginner should keep in mind when they are focusing on excelling at DSA? वन थिंग दैट आई पर्सनली फील कि डीएसए में पहले, अभी डीएसए पढ़ लिया है पूरा, आई एम जस्ट लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस रेगुलरली जैसे भी होता है, आई हैव सॉल्व्ड इनफ ऑफ क्वेश्चंस आई फील, एंड इट्स जस्ट कि अब थोड़ा सा वही है, अभी कुछ और नहीं है तो करना तो है ही, बिकॉज यू हैव टू लाइक गेट कीप इन टच। बट शुरू जब किया था ना, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी व्हेन यू स्टार्ट विद लेक्चर्स। आपने मानो 10 लेक्चर्स देख लिए हैं अभी, 3-4 दिन के अंदर यू आर एट लेक्चर 10, लेट्स से फॉर सम रीजन आपके एग्जाम्स आ गए, कुछ भी हुआ और ब्रेक हो गया, तो आप जब 11th लेक्चर पे, अब मानो 10-15 दिन का ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ मेडिसिन या कुछ भी, एंड आप रीस्टार्ट करते हो हिम्मत करके, द वन थिंग दैट स्केयर्स यू कि भाई मैंने जो 10 लेक्चर्स में पढ़ा था मुझे बिल्कुल याद नहीं होगा, मुझे नहीं आता, मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ दोबारा फिर से 7th 8th 9th 10th पे आते आते ना समथिंग कम्स अप, 1-2 दिन 3-4 दिन का ब्रेक हो जाएगा, और फिर दोबारा मैं डरूंगा कि मुझे 10th तक का नहीं आता, एंड आई बी लाइक आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस विशियस साइकिल कि भाई मैं भूल गया पीछे वाला, सो आई शुड गो बैक स्टडी इट ऑल, तो मेरी एनर्जी जो मोटिवेशन आती है वो तो वापस से 1 to 10 देखने में ही चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, दिस थिंग आई टेल, लाइक अभी मेरा यंगर ब्रदर लाइक कजन ही गॉट एडमिटेड इन डीटीयू, तो वो फर्स्ट ईयर Oh, में अगर वो nice. स्टार्ट कर रहा था तो उसके साथ भी ये हो रहा था। मैंने उसको एक ही चीज समझाई, देख अगर 1 to 10 तूने देख लिया है ना, मतलब लेट्स से एनी लाइक 15 to 16 या कुछ भी, तूने अगर कोई लेक्चर पर्टिकुलरली देख लिया है, इस चीज पे ज्यादा फोकस मत कर कि भाई तेरे को उसमें मास्टरी ही करनी है, तेरे को 100% लेक्चर याद ही होना चाहिए। तूने एरेज पढ़ लिया, अभी तू भूल गया, कोई बात नहीं, आगे वाला लेक्चर देख, जब वो पढ़ाएंगे ना तुझे सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ ऐसा नया नहीं होगा, कोई बात नहीं तुझे उस समय पे याद नहीं आ रहा कि भाई एरे को डिक्लेयर कैसे करते थे, जब वो करेंगे तो तुझे सब याद आ जाएगा। बट अगर तू यहाँ पे रुक गया ना तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चीज मैंने सबसे ज्यादा अपने जेई प्रिपरेशन के थ्रू सीखी थी कि एक चैप्टर अगर पढ़ लिया है ना, तो यार उससे आगे बढ़ो, आप एक ही चैप्टर पे नहीं लगे रह सकते, यू हैव अ बिग सिलेबस टू कंप्लीट। आप अगर 1 2 3 चैप्टर्स पे लगे हो या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी लगे हो, एक्चुअली क्या होता है, वो हम चैप्टर को मास्टरी नहीं कर रहे होते, वी आर जस्ट स्टेइंग इन अ कंफर्ट जोन। हम Yeah. कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे होते, क्योंकि हमें पता है कि एरेज पढ़ लिया है तो अब स्ट्रिंग सीखना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग सीखने का मन नहीं हो रहा होता क्योंकि नया कुछ सीखना पड़ेगा, चलो स्ट्रिंग्स तो फिर भी इजी है, लिंक्ड लिस्ट पढ़ने का मन नहीं हो वो रहा होता डर कि होता है अंदर, क्या। द फियर. एग्जैक्टली, तो उससे बाहर निकलने के लिए ना स्टार्ट कर दो यार, एक लेक्चर देख लो, ग्राफ्स है मुश्किल है, एक देख लो, कुछ तो आ ही जाएगा, एक और देख लो फिर थोड़ा और आ जाएगा, तीसरे चौथे तक आपके लिए जो फर्स्ट लेक्चर, एटलीस्ट तीसरा चौथा लेक्चर अगर अच्छे से मतलब इजी नहीं होगा आपके लिए, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड तो इजी हो जाएंगे ना, वो तो समझ आ ही जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते रहो, ठीक है, नोट्स भी बनाते रहो, चाहे रिवाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इट्स मेरा गया. नहीं आता, लेकिन जब तक बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ लोगे ना कहीं वो डर हमेशा रहेगा कि भाई मुझे नहीं आता। Hmm. एक बार अगर पूरा आ गया एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया होगा, फिर उसके बाद टाइम बचेगा उसमें कर लेना। पर अगर तुमने किया ही नहीं और तुम एक ही चीज पढ़ते रहे तो टाइम भी निकल जाएगा और कुछ आएगा भी नहीं। Right. What do you prefer, like having like watching all the videos together and then solving lead code questions, or solving lead code questions side by side? No, what I like is like one lecture in that course is something like on an average 1 hour, हाँ, 130. 45 to 1 hour. हाँ. हाँ, सो इवन इफ अगर कोई 2 घंटे का भी होता है तो आई ब्रेक इट डाउन कि मैं 1 घंटे में देखता हूँ आधा लेक्चर, आधा 1 घंटे में देखता हूँ। क्या होता है, जैसे मैंने अगर मानो ट्रीज पढ़ा, तो जैसे ही उन्होंने, अगर मैंने ट्रीज का एक लेक्चर देख लिया, मैं उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आई ट्राई टू सर्च ऑन लीड कोड या फिर एनी अदर वेबसाइट, जो भी उससे रिलेटेड हो, इफ से मैंने प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर अगर पढ़ लिया है तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखता हूँ उनको, पहले खुद से एक बार मैं बहुत अच्छे से ना क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ नोटबुक पे लिख के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं एक बार जाकर कहीं यूट्यूब पर या कहीं पर उसकी पहले अप्रोच देखता हूँ,
मतलब कोड तो ऑब्वियसली सब बाद में ही लिखते हैं, तो पहले मैं अप्रोच समझ लेता हूँ, उसके बाद खुद कोड करता हूँ। मोस्टली यहाँ तक कोड हो जाता है कि अगर अप्रोच समझ आ जाती है फिर कोड हो जाता है, बट अगर वो भी नहीं होता है तो मैं लाइक वीडियो का कोड देखने की जगह अपने कोड को जाके चैट जीपीटी से डीबग कराता हूँ, तो मुझे मोस्टली छोटी छोटी मिस्टेक्स ही पता चल जाती हैं। फिर उसके बाद एक बार वीडियो का कोड भी देख लेता हूँ कि अगर वो ऑप्टिमल अप्रोच हुई तो उसको भी ज़रूर मैं लिख लूँ। तो इस तरह से आई गो थ्रू इट। तो मेरे को लगता है इस सेंस में ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है, बट वही है, टाइम लेता है थोड़ा सा ये वाली चीज़। तो कोई अगर लास्ट फेज में अपने तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, बट अगर मेरे ख्याल से 2-3 महीने है किसी के पास कंप्लीटली टाइम है, जैसे कि तुम लोग का तो अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है, हम्म। तो जैसे ब्रेक आएगा विंटर्स का या फिर कुछ भी होगा तो उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ अगर कोई करे तो बढ़िया निकल सकता है। Right, मतलब you prefer कि मतलब it's generally good कि you don't see the code at first, you don't like copy paste the code and all, try it with your own approach. एग्जैक्टली मैं अपनी अप्रोच करके ना फिर इवन समटाइम्स आई डोंट गो टू द वीडियो, अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ही कुछ शायद गलती है यहाँ पर, तो मैं चैट जीपीटी से डिबग डीबग करा लेता हूँ, वो एक दो मिस्टेक्स मेरे को बता देता है। एक्चुअली मैं डीबग भी नहीं कराता, आई जस्ट टेल के पॉइंट आउट द एरर्स इन दिस कोड, हाँ, it तो works, वो yeah. ये बता देता है कि दैट आई एम नॉट यूजिंग दिस, से it is very easier। तो very good example of use of AI in learning to code। तो ये Exactly. चीज आई गेस सबको बहुत यूज करनी चाहिए, बहुत हेल्पफुल होती है। Even like I use it to debug. But what happens is like I sometimes fall in the cycle. I watch the entire video of the question. I see the code as well, and then I go and code. So it's like I've already seen the code and then I do it. दैट्स आल्सो फाइन। तो इसके लिए एक अच्छी चीज है ना, आपने अगर वीडियो देख भी ली है, आप एक काम करो, 5-6 मिनट कुछ और काम कर लो, 10 मिनट कुछ और काम कर लो, Right. देन कम बैक टू इट। तो Active अच्छी recall. चीज है कि एटलीस्ट आपको ना अप्रोच दिमाग में अगर सेटल हो गई होगी, यू विल Hmm. कोड। और मैं ये भी कह सकता हूँ आप डिफरेंट कोड करोगे उस वीडियो से, Yeah, possibly. क्योंकि आपको फोकस अप्रोच पे करना है, कोड पे नहीं। Yeah. Code नहीं रटना है basically. You have to figure out the approach. एग्जैक्टली। Okay. And what is your like time management strategy? Are you like would you consider yourself good at time management? Honestly, not very good, but if I say कि like not, I wouldn't say very bad either, How क्योंकि do you keep track of your time? So how do you spend your time generally? okay, so I would sound like very disciplined if I tell this right now, but I have to get it. Just give me a second. I have Sure, to get sure. it. Yeah, am I audible? Yeah, you are. So like I would just say, don't think I'm any show off or anything, but or I'm not even any Ankur Wariko at time management. No worries. Just trying to do my little part. So this is something that is helping me a lot. So I created this like grid in my diary few days back. I had to do a few things, like I was getting out of shape again, and like I stopped working out in October, and I really wanted to uh, go back to the gym. So I created these Oh, like lead code streak right. helps you continue lead Yeah, code. So yeah. I I created did that it sort of for thing. 1 month because of the streak. I wanted to see all green. Exactly. So I created this thing here. So it has a few things like even not using the phone for 4 hours uh, Oh. continuously, like in a day, or Oh, it's like, reading four did you pages. do this? Did you do this? Did you do this? Yeah, If you did it, exactly. it's green. If you like missed Yeah. it, then it's red. So reading 4 pages. This red line, this is about web development lectures. Oh shit. I haven't studied it, seen any till now for the last few days. But yeah, working out, lead code. Then there is my protein. I have to complete like this much intake in a day.
या सो दिस इज हेल्पिंग मी अ लॉट. इसके अंदर ना मैंने बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं डाले ऑनेस्टली. लाइक अगर सुबह का वर्कआउट है, इट डजंट हैव टू बी अ वेरी स्वेटी वन या फिर बहुत एग्जॉस्टिंग वर्कआउट नहीं होना चाहिए. इट कैन बी 15 मिनट्स ऑफ बीइंग एक्टिव एंड दैट्स इनफ. तो दैट्स अ ग्रीन टिक फॉर मी. सो दैट इज द मोटिवेशन कि भाई एक और ग्रीन टिक ऐड हो Yeah, जाएगा फॉर 15 मिनट्स ओनली. और कई बार होता है दैट आप अगर रिदम में आ जाते हो, यू स्ट्रेच इट लॉन्गर ऑफ कोर्स. exactly. सो दैट्स द थिंग कि रीड कोड पे भी यही अच्छी चीज होती है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने एक ग्रीन उसके लिए. आप एक के लिए करो. हाँ. एंड द थिंग इज आप एक बार साइट पर चले जाओ, आपसे एक होगा ना, दैट gives you the adrenaline rush to do more. And it's even better to focus on doing that one question in the beginning of the day. Exactly. Then it's लास्ट में even मत करो, better. लास्ट के लिए मत छोड़ो. हाँ. और सबसे ये किसी भी चीज में अप्लाई होता है. इफ यू गो टू द जिम, आपका मन नहीं है बिल्कुल जिम जाने का, जस्ट टेल योर सेल्फ कि मैं जिम जाऊंगा, जिम के अंदर जाके 10 पुशअप्स करूंगा और वापस आ जाऊंगा. हाँ. अब जिम में जाओगे, आप 10 पुशअप करोगे अपने आसपास, वो एनवायरमेंट इज द थिंग यार. Exactly. एग्जैक्टली. You will see everyone लाइब्रेरी. doing, and then you will also be like, I also need थोड़ा और कर ही लेता हूँ. एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक के थोड़ा और क्या, फिर उसके बाद आप फील में आ जाते हो एंड आपको खुद भी अपनी कमिटमेंट याद आ जाती है. तो फिर इसी तरह से रीड 4 पेजेस. लाइक आई हैव नॉट बीन अ वेरी गुड रीडर, बट इफ यू सी हियर तो मेरा काफी कंटिन्यूस सा था रीडिंग के I लिए. do the same thing on Notion. So I created a calendar, and then on that in that I put a page. If it's like a success, then I put a red icon on it, and if it's like a fail, I put a success green icon, fail red Yeah. icon. सो आई हैवंट बीन अ वेरी गुड रीडर, बट रिसेंटली मैंने देखा कि आई जस्ट डेवलप दिस वन हैबिट कि मैं सुबह उठते ही फोन टच नहीं करूंगा. मतलब एक बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हाँ. कुछ होती है या कुछ है तो वो चेक करना. इवन अगर कोई मैसेजेस है, आई डोंट रीड मैसेजेस के, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, किसी और सेंस में चलने लगेगा. तो मैं फोन छूता नहीं हूँ सुबह उठते ही. मैं उठ जाता हूँ. और आई वॉज रीडिंग दिस बुक रिसेंटली, कांट हर्ट मी बाय Right, डेविड David गॉगिन्स. Goggins. so that I started reading. तो that book is interesting. तो मेरा यही गोल होता है, even if I'm very sleepy. Even today I read the book before like coming for this podcast. तो uh, I just have to read 4 pages. That's it. I just have to tell myself कभी मन नहीं है ना, 4 pages are not too big कि मेरे Yeah, से नहीं four हो is पाएगा. doable. और अगर कभी मन लग जाता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, आई कीप गोइंग ऑन. एटलीस्ट मेरा वो 4 4 पेजेस करके आई कंप्लीटेड द बुक. बस लास्ट चैप्टर पे हूँ, तो इट फील्स रियली गुड के. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग कि कोई तुम रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो. यू नो Mm-hmm. एटलीस्ट अबाउट द बुक, कुछ तो डिफरेंस उसने क्रिएट ही किया है तुम्हारी लाइफ में. Yeah. एंड उस बुक ने तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा करने की पोटेंशियल है उस बुक के अंदर. तो बहुत बहुत अच्छी है. The आई लाइक David इट. Goggins is a very, what can I say, inspirational person. या, ही इज अ बीस्ट. Run, go morning and run. एग्जैक्टली. I used to go running in the morning, but then Delhi. So या. I feel unsafe walking also. I carry a mask with me Exactly. sometimes. But it was good. It rained like Yeah, a yeah, yeah. couple of It's very days good now. yesterday, And so it's it very was good. cold as well now. Yeah, Yeah. yeah. What are So your this is like, huh? this is one thing that helps me manage my time. I've tried a lot of things, but ye wali cheese is the best till now. Try something like this on Notion. It becomes even more easier. Like Yeah, if, I have done it on Notion. I have done it on Notion, but the thing is, मेरे को थोड़ा सा screen time कम रखना था. I didn't want to log in बार बार on the laptop and get distracted और yeah. ऐसा ऐसा ना. Yeah, it's the So I same thing. wanted No, to keep it handy. some people try reading books on phone. They try reading ebooks. Now that again, Yes. I feel it's like increasing your screen time. एग्जैक्टली. इट स्केयर्स मी. कभी मुझे फाइल का काम करना है एंड आई एम डूइंग इट विद माय फोन, मुझे लगता है यार वो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाएगा, फिर मुझे रिग्रेट होगा बाद में. ऑल्दो आई एम नॉट यूजिंग द फोन, फिर भी. Exactly. What are your two, three best learnings from the book that you've been reading? Can't hurt me. Okay, so that question honestly gave me a goosebumps like right now. So book was really amazing. Just give me a second to Sure, collect sure. everything Like I learned. recall whatever the best things were from the book. All right. So one of my favorite things from the book was being uncommon amongst the uncommon. That's something I really feel कि मेरा एक regret, something I wanted to talk about before starting this podcast. I told you, Yeah. being good
at JE or at school level or anything like that कि आपने excel किया, that's very good, you came to DTU. But now the thing is आपके around जो 2000 बच्चे हैं, they are exactly or maybe a little better than you. Yeah, almost at Okay. the same level. Yeah, so getting into DTU or IIT or any XYZ college was not the deal. The deal was to excel here. Yeah. यहाँ पे बेस्ट बनना, यहाँ पे वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंकलर वाली जॉब फोड़ना. ओके, Hmm. मे बी आपका कुछ और हो सकता है प्लान, कुछ भी हो सकता है, आपको रिसर्च में जाना था या कुछ, बट ऑनेस्टली in my first 3 years of college, I didn't give the 100% effort that I had to put in. चाहे वो academics में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कह लो that I was doing other things also, YouTube and everything. That's completely fine. But that didn't stop me from giving my time to academics or DSA or anything, like preparing for this internship and everything. So maybe one of those reasons was also कि I didn't have any clue honestly, क्योंकि 2 साल शुरू के online गए थे. I was not going to college. I was not in touch with any senior जो कि मेरा guide path कर सके, like path guide कर सके, sorry. हाँ, सो मेरे को कोई क्लू था नहीं कि किस साल में क्या चीज़ें करनी होती है। लाइक अभी अगर मैं किसी को समझाऊँ, अगर किसी का गोल प्लेसमेंट है, बहुत सिंपल है कि यार फर्स्ट ईयर में आओ, धीरे-धीरे डीएसए पढ़ना स्टार्ट करो, अपना साथ में सीजीपीए अच्छी रखो, सेकंड ईयर में पूरी तरह से डीएसए में घुस जाओ, डेवलपमेंट करो थोड़ी बहुत, थर्ड ईयर में इंटर्न लो, उसके बाद सॉर्टेड है सीन। बट हमें हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी, एंड 2 साल कॉलेज ना आने की वजह से ना, क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए थे ऑफलाइन, तो हमारी पढ़ने की आदत छूट गई थी। तो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज को. एंड वन ऑफ द लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग अनकॉमन अमंग्स द अनकॉमन. तो यहाँ पर आकर भी बेस्ट परफॉर्मर होना मेरे ख्याल से कहीं पर भी आपको कभी खुद को, यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग द बेस्ट परफॉर्मर. डजंट मैटर यू स्टैंड फर्स्ट और सेकंड और लास्ट, अपना 100% देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर थिंग इज कि what got you here, the same things are not going to get you where you want to be. आपको हमेशा पुश करते रहना होगा, हमेशा पुश करते रहना होगा, बी इट फिजिकली, मेंटली. इट्स मोस्टली अ मेंटल गेम, मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, इवन इन रनिंग अ मैराथन इट्स अ मेंटल गेम. आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा. यू हैव टू फाइट योर टेम्पटेशन, यू हैव टू फाइट जो भी, यू हैव टू लर्न टू से नो टू एनीथिंग, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड कंप्लीटली. बिना ऑब्सेशन के नहीं आएगी कोई भी चीज, नहीं आएगी, पागल होना पड़ता है किसी भी चीज के लिए. आई वाज वाचिंग दिस, लाइक I don't watch a lot of web series or movies. ऐसे नहीं that I'm very focused on anything. It's just that मेरे को लगता है कि I have to put effort into sitting and paying my attention Yeah, to even it. I can't watch a movie in one sitting. Web series is still doable, Yeah. but movie for 3 hours continuously I cannot sit. Yeah, that's why I love documentaries. वो 1 या 2 घंटे के होते हैं. Yeah. So I was watching The Test on Prime. तो मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली बताया था द टेस्ट देख, अच्छी है काफी. इट इज बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम्स 2018-2019 सीजन एंड एवरीथिंग. उसमें ना आई सॉ स्टीव स्मिथ्स कैरेक्टर. आई नेवर सॉ स्टीव स्मिथ एज दैट प्लेयर द वे आई लुक एट हिम नाउ. His teammates tell he's shadow batting everywhere. He's like, he just wants to bat. He wants to bat at the nets, he wants to bat at the dinner table, he's shadow batting at the corridor. He's like, he's so obsessed with batting, he wants to bat all the time. And then I saw that's why he's one of those greatest players in Australian cricket. So I think, and at the same time, David Goggins, completely obsessed, running 100 miles a week, 150 miles a week. People are not even walking this much in a year. Very true. It requires great obsession at anything. I now I understand why coders spend 10, 12 hours a day on their like chairs. Then only they get to that 5 star, 6 star rating and everything. We don't see the obsession. हमें वो दिखता ही नहीं है. They miss everything. They will not come out to play with you, they will not come out to enjoy parties with you, they will not do anything. Even I remember these phases of obsession in my life. Like I remember when I started, like I got a Rubik's cube in my childhood. So yeah, so उस समय पे I had no clue ये चीज कैसे solve होगी, क्या होगा. And there was not even many resources internet पे. I was in 7th class. I just wanted someone to teach me how to solve this thing. तो आई इवेंचुअली गॉट टू लर्न कि ये कैसे सॉल्व होता है. आई इट टुक मी लाइक, आई वाज
on in my room for 12, 13 hours continuously. I didn't just go out. I was trying to learn. I was trying to remember the algorithms. And then I got so obsessed with it. I used to spend hours on this thing. Same with बीट माई लाइक जब मैंने कोविड टाइम पे वेट लूज किया था इट वाज इन थ्रू एनी जिम और एनीथिंग सो आई वाज ओनली वर्किंग आउट ऑन माय रूफ टॉप Oh. एंड मेरा जेई भी आ रहा था सो आई हैड दिस ऑब्सेशन इन मी कि मुझे ये करना ही है इट केम आउट बिकॉज ऑफ लाइक आई रिमेम्बर एक बार दोस्तों के बीच में बैठ के किसी ने कुछ बोल दिया एंड दैट थिंग रियली हर्ट रियली हर्ट आई डोंट नो हाउ इट हर्ट मी सो बैड क्योंकि ऐसा नहीं था पहली बार कुछ सुना था बट पता नहीं उस समय मैं पागल हो गया एंड मैं सुबह उठ के पढ़ता था पढ़ते ही चाहे दोपहर हो रही हो गंदी वाली धूप हो रही है वो मई के टाइम का मैं बता रहा हूँ Oh कि my God, Delhi and May. या दिल्ली इन मे ऑन माई रूफटॉप रनिंग लाइक एनीथिंग 1 घंटे तक एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई 1 घंटे की लगाया हेडफोन सब कुछ छोड़ दिया और भाग रहे हैं बस छत पे चक्कर काट रहे हैं स्किपिंग कर रहे हैं पागलों की तरह स्किपिंग कर रहे हैं लाइक आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी फेयर एंड आई गॉट सो टैंड I show you a picture sometime where I look like a hobo. My skin like it had folds and everything and I was so weak. I was literally weak, but I lost it. I was so obsessed with it, I lost it. And that's the thing. Now I could solve a Rubik's Cube in 20 seconds. That's because of the that I had as a kid. If there wasn't that obsession, if I like कई बार ना हम बहुत प्लानिंग करते हैं कि यार मैं इतना काम इस दिन करूंगा इतना इस दिन यार मेरे को ये लगता है जो प्रोएक्टिव बंदे होते हैं ना दे आर लाइक अगर मैंने आज आपको बताया कुछ कि भाई ये करके ऐसे चीज होती है मैं आपको सिखाऊंगा उस दिन मिलते हैं जब मैं आपसे उस दिन मिलूंगा ना इफ यू आर वन ऑफ दोज ऑब्सेस्ड गाइस जब मैं आपसे मिलूंगा आप 50% करके आए होगे आप अपने डाउट्स लाए होगे आप सीखने नहीं आओगे आप बोलोगे हाँ हाँ ये सब मैंने कर लिया यहाँ से बताओ ये सब तो हो गया और Little जब मैं little every day compounds. एक बार कुछ ऐसा बताऊंगा जैसे कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा बताया आप अगली बार पता चलेगा खत्म ही करके आ गए वो चीज 1 महीने बाद यू आर लिटरली अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग ऑब्सेस्ड लोग ऐसे होते हैं ये दो चीजें आई लर्न फ्रॉम द बुक एंड द थर्ड थिंग इफ आई हैव टू से इज uh, never settling that I guess covers in the first point then चीजें बहुत सारी हैं बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स जिनमें No इन चीजों worries. Even these two have been perfect. Perfect. या Yeah. No. but yeah the third thing I really liked about David Goggins was him being one of the best yet getting like the motivation and inspiration from other people उसकी book में he has mentioned a lot how he met like other people in at different stages of birds or be it seal training or anything तो वहाँ पे he used to see people जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं in their particular field and he used to respect that thing and he wanted to be better than that he wanted to like he wasn't taking them as rivals he used to be friends with them he used to be friends with the best and then Right. even trying to beat them at their thing. So I think that he absorbs like a sponge. So He had that that humility and competitive spirit in him. exactly like that was great. That was great. Right. What are some of the regrets that you've had? You mentioned a couple of them in this answer as well. But what are the other regrets that you've had in your initial college life, college journey? Yeah. So honestly, as such मैं इतना regrets के बारे में सोचता हूँ नहीं, but सिर्फ ये चीज की हाँ ये चीज self realization की तरह ज्यादा Yeah, बोल it's like सकते if I हैं had done this better, it could have been good. या बट राइट नाउ वही वाली एक ये थॉट मेरे दिमाग में बहुत चलता है आई गेस ये बुक में था आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज इन द बुक और नॉट बट ये बहुत ही मेरे को इंसाइटफुल थॉट लगता है कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर थिंग वाज 1 year ago And the and the next second best best? time is today Yeah, second best time is today yeah. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड इसलिए मैं सोचता भी हूँ कि यार फर्स्ट ईयर में डीएसए करा होता अभी इंटर्न होती है होता सब सॉर्टेड होता अब एक चीज समझ आ गई है सॉर्टेड कुछ नहीं होता पहली बात दूसरी चीज कोई बात नहीं अब तक नहीं करा तुमने कुछ डिफरेंट कर लिया इंटर्न में जो पैसे मिलते तुमने भी थोड़े बहुत पैसे कमा लिए कोई बात नहीं उस चीज का रिग्रेट मत लो अभी
इवन टुडे डोंट रन आफ्टर अ प्लेसमेंट, सिर्फ प्लेस होने की मत सोचो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 1000 क्वेश्चंस लीड कोड पे करे एंड दे आर बीइंग प्लेस्ड इन कंपनीज व्हिच आर ऑफरिंग 7 लाख पर एनम. आई लुक एट इट एज एन एल ऑनेस्टली, कि यार तुमने It feels तुम bad. वही. बट देन ऑल्सो ना कि तुम उसको इस तरह भी नहीं देख सकते, हर किसी का अपना माइंडसेट है, और Hmm. भाई वो बंदा अभी 7 पे काम कर रहा है, ऐसे टाइम बीतता है जो 70 पे पहुंच जाएगा या फिर उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है. वो True. तो एक अच्छी चीज है, बट मेरे को सिर्फ इसके लिए काम नहीं करना. मैं ये चाहता हूँ एक बार अच्छे से केपेबल हो जाऊं ना, उसके बाद चाहे मैं 2 लाख पे काम कर लूंगा, साल का 2 लाख दे दो, पर मेरे को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये काम मुझे आता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे दी गई थी मैं उसी के लिए बना गया हूँ, और मुझे ये काम करना है. अभी भी ऐसी जॉब्स हैं जो मैं एग्जैक्टली कर सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे वो काम नहीं करना. तो फिर मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ये करूँ. अगर मेरे दिमाग में है ना कि मुझे भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, और मुझे पता है कि अभी मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, तो जबरदस्ती मैं ये करूँ कि भाई बस किसी तरह से चाहे चीटिंग करूँ चाहे कुछ करूँ, बस मैं प्लेस हो जाएगा, कोई भी बंदा हो जाएगा. आप ओए में हेल्प ले लो, आप Hmm. इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ लो, और लक की भी बात है आपसे वही पूछ लिया जाए, पर मुझे लगता है उसका फायदा नहीं है. Right. रादर देन मैं खुद को प्रिपेयर करूँ ना, हो सकता है भाई अभी मैं हाफ नॉलेज है ना और किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर करूँ तो शायद मेरा अभी भी हो जाए, मैं उसके साथ खुश हूँ. इस चीज के साथ खुश हूँ कि मैं उस चीज के लिए पागल नहीं हो रहा था, थ्राइव नहीं कर रहा था. मैं उस इंटरव्यू के लिए गया था फॉर एक्सपीरियंस, पर उन लोगों को मैं इतना सही लगा या फिर फिट फॉर द जॉब लगा कि उनको मैं अभी भी अच्छा लगा. और ये होगा कि अगर मैं प्लेस हो गया ना तो उसके बाद ना आई विल नॉट बी एंजॉइंग. उसके बाद ना मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरा बचा हुआ है ना, कि भाई मुझे पता है मैंने ये गोल तो अभी तक नहीं अचीव करा, नहीं ये कोर्स कंप्लीट नहीं करा, इतने ये चीज नहीं करी, मैं पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद एंजॉय करेंगे. Right. तो अभी ये वाला थोड़ा-सा माइंडसेट हो गया है इधर से. तो Right. ये एक रिग्रेट ये वाली चीज़ थी कि स्टार्टिंग से थोड़ा-सा आपको यार इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. अगर क्योंकि अब अगर आप डीटीयू में आ रहे हो, ऑफ कोर्स आप एक पढ़ने वाले बच्चे ही रहे होंगे. तो ये तो ट्रू है दैट स्टडीइंग इज़ वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स. तो उस चीज़ को बेकार मत करो सिर्फ थोड़े से एन्जॉयमेंट के लिए. पढ़ाई दुःख देती है, पर यार प्लेज़र भी उतना ही देगी, ठीक है? इन द लाइक इट कमिंग. हाँ. Yeah. वही तो. ये तो है ही, आप अपने आप को क्यों चेंज कर रहे हो फालतू में किसी और चीज के लिए, अनटिल अनलेस आपको बहुत मतलब ये था कि भाई मैं पागलों की तरह पढ़ ही इसलिए रहा था कि डीटीयू में आ जाऊं, क्योंकि एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी डीटीयू से मिलती है. Hmm. लेट से कहीं भी आपको मतलब कुछ भी करना था, फिर एमयूएन ले लो, एक्टिंग ले लो, सिंगिंग ले लो, अगर वो प्लेटफॉर्म डीटीयू से मिल रहा है या किसी भी XYZ कॉलेज से मिल रहा है, वहां जाने के लिए आपने पढ़ाई को एक जरिया बनाया, दैट्स गुड. पर आपको तो पता था ना कि यार आपको पढ़ाई ही करनी है, तो फिर यहाँ आके अच्छे से क्यों नहीं कर रहे. वो चीज़ एक अच्छे से रखो. एक अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर टच में रहो. सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नॉलेज देते हैं. जेन्युइनली सीनियर्स आर लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक टू यू. क्योंकि उनको अपनी गलतियाँ बताऊँगी, उनको अपनी अच्छाइयाँ भी बताऊँगी कि भई मैंने ये चीज़ करी थी, इट हेल्प्ड मी, तुझे भी हेल्प करेगी, कर ले. मैंने ये चीज़ करी थी, इट हेल्प्ड मी, पर अभी के टाइम तुझे हेल्प नहीं करेगी, ये मत कर. ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छे सीनियर्स के साथ टच में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को सही लगता है कि ये पार्ट ऑफ रिग्रेट जो भी है सेल्फ रियलाइज़ेशन है, अब मुझे रियलाइज़ होता है. तो मैं अपने जूनियर्स को अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, एंड आई ट्राई टू लाइक बी इन टच विद अ लॉट ऑफ जूनियर्स, कि जो भी पूछना है यार पूछ लो, कुछ भी स्टूपिड से स्टूपिड चीज़ हो. क्योंकि मुझे पता है हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता एग्जैक्टली जूनियर्स की तरह, हमारा दिमाग ब्लैंक होता है, हमें कुछ नहीं पता होता. टीचर्स से हमें कुछ गाइडेंस एज सच मिल नहीं रही होती, until and unless you are in touch with some teacher, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है. मोस्टली यंग टीचर्स के साथ ही आप रह सकते हो. हाँ. हाँ. सो वो वाली चीज़ है. एंड इसके अलावा अगर मैं कुछ कहूँ तो यार कॉलेज में रहना अच्छा होता है, पता है. कॉलेज में रहना अच्छा होता है, कॉलेज में यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल और सब. बट ना कई बार ना हम बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कॉलेज में बहुत. कंफर्टेबल हो जाते हैं. वही कि भाई अगर दोस्त की क्लास 4 बजे छूटनी है, आप 1 बजे फ्री हो गए, आप 4 बजे तक टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर कुछ कर रहे हो, या तो आप इतने फोकस्ड हो कि आप लाइब्रेरी जाके पढ़ लो 3 घंटा, जो कि 90% लोग नहीं होते, इवन नहीं हो पढ़ने वाले पाते. बच्चे भी इतना नहीं कर पाते. यार ज्यादा अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करो मत, घर आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है. तो ये एक रिग्रेट था कि भाई जब जब मैं पीजी पे था, बहुत इस तरह से टाइम वेस्ट हो रहा था, एंड कुछ भी ठीक तरीके से चल नहीं रहा था, कोई रूटीन नहीं था. तो रूटीन तो इम्पोर्टेंट होता है यार. रूटीन के साथ ना, जैसे आउट आउट ऑफ अ रूटीन रिग्रेट्स एंड वर्क पाइल्स अप, पर रूटीन के अंदर अचीवमेंट पाइल अप, ये मुझे लगता है. That was very good insight. वो मस्त था. या
तो these are a few things जो मेरे को लगता है सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं इनको rather than Okay, regrets. cool. What are like two, three things or some things that a person who's just begun his college life, he's in the initial phase of his college life, what should he keep in mind? ये एक चीज़ है जो सब बोलते हैं, सबने सुनी भी होती है, पर हम फिर भी मतलब इस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस कर नहीं रखते हैं, जो कि मुझे लगता है डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। आई डिडन्ट अप्लाई एट सीएम और मैथ्स एज़ सोसाइटीज़ जो कि हमारे मैथमेटिक्स वगैरह की Yeah. सोसाइटीज़ हैं। ये सोच के कि यहाँ पे यार कुछ पढ़ाई का होता होगा, कुछ होता होगा, क्यों आइडिया ही नहीं था क्या था। भाई तुम्हें अगर इंटरेस्ट आ रहा है ना हल्का सा भी, इंटरेस्ट क्या नहीं भी है ना इंटरेस्ट यार घुस जाओ, क्योंकि यही वाली लाइफ है। अब 4 साल हो गए, स्पोर्ट खेला, कल क्रिकेट खेल के आए थे कॉलेज में, ठीक है। तो मतलब ऐसे दोस्तों ने देखा, सब कह रहे भाई बढ़िया खेलता है, ये है वो है, तू खेल क्यों नहीं रहा? तो मुझे तो लगा था ऐसे ही खेलता होगा। अब ये चीज सुन के ना ऐसा फील होता है यार 4 साल हो गए, अरीना नहीं खेला, खत्म हो गया। ये बहुत बुरा कि भाई तुम घुस जाओ, Yeah, तुम you could ट्राई। do well in powerlifting maybe. हाँ, आई वही कुछ भी कर सकता था यार, यही सोच के रुक जाते थे कि ट्रायल्स में ही फेल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा। कोई बात नहीं, ट्रायल्स में फेल हो गए तो क्या हो गया, एटलीस्ट जाओगे तो भाई यार उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारा करो, ठीक है। तो Hmm. कहीं पे भी रुको मत, कहीं पे भी खुद को डराओ मत। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें भी नहीं पता क्या कर सकते हो, तुम बस हर चीज के लिए जाते रहो, अपने लिए दरवाजे बंद मत करो अपॉर्चुनिटी के। हर चीज की अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल के रखो, हर जगह अप्लाई कर दो, ठीक है। कि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट तुम्हारा मन बन गया कि भाई मेरे को इधर ही जाना है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी तो बंद ना हो ना, हाँ, डेडलाइन लॉक तो ना ना हो जाए. चाहिए। वही तुम रिजेक्ट कर दो बाद में तो ज्यादा ठीक है। तो उस चीज से मुझे लगता है कि ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि किसी भी चीज से डरो मत। कंप्यूटर साइंस वाले हो, बायोटेक वाली चीजों में भी इंटरेस्ट दिखाओ, बायोटेक वाले लोगों में भी इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। I know the background. हाँ, ठीक है। तो सिविल वाले हो भाई, मैकेनिकल वालों से दोस्ती करो, सब रखो, ठीक है। तो हर चीज में मतलब तुम्हारा पता होना चाहिए तुम्हें, यू शुड नो एवरीथिंग, देन यू शुड नो कि तुम्हें क्या करना है। ये तो बहुत जरूरी है, हर चीज जानना। ये कई बार ना होता है कि कंप्यूटर वाले बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही करते रह जाते हैं, उन्हें बहुत बिल्कुल जनरल नॉलेज होती ही नहीं किसी भी चीज की, कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या चीज कैसे होती है। तो मेरे को लगता है आपको पता सब कुछ होना चाहिए, देन यू शुड नो कि आपको करना क्या है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा नया आ रहा है तो भाई यही है, सीजीपीए अच्छी रखो अपनी, बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन मैं कह रहा हूँ 8 सीजीपीए इज नॉट इनफ इन डीटीयू, क्योंकि At बच्चे this बहुत point, ज्यादा हैं। yeah. तो वो वाली चीज है, 8 तो मैंने तुम लोगों के लिए कही है, हमारा तो क्योंकि ऑनलाइन था तो 8.5 इज नॉट इनफ, 9 ही है इनको तो सीजीपीए बहुत अच्छी रखो। और ऑफ कोर्स सीनियर्स के साथ टच में रहो, और जो सीनियर्स थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं ना उनके साथ जरूर टच में रहो। जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं ना, मेरे को लगता है वो वही है, पढ़ाई के लिए तुम्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं। पर अगर तुम, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जूनियर्स से जिनको यूट्यूब करना है, मेरे को रैंडमली पकड़ लेते हैं कि भैया मेरा बहुत मन है यूट्यूब करने का, तो मेरा एक ही एडवाइस होती है, व्हाट्स स्टॉपिंग यू, कर लो Hmm. भाई, मत सोचो ज्यादा। तुम्हारे पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास जब फोन नहीं था तो मैं, अपने एक दोस्त था उसके पास बढ़िया फोन था, तो उसके घर जाके शूट करता था। और मतलब शुरू में ये था कि मतलब उसके पास था तो वो भी आ जाता था मेरी वीडियो में, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। लैपटॉप भी उसका बेटर था, मैं वहीं बैठ के एडिट करता रहता था घंटों घंटों तक, ऐसे था। फिर उसके बाद फोन आ गया तो खुद करने लग गए शूट। और नहीं भी था तो अपना फोन जो था रेडमी वगैरह का कोई वो था, नोट 5 प्रो था मेरे पास। तो गली में सारे में शोर मच रहा है, सब हो रहा है, सारे दरवाजे बंद करके बैठे हैं, और फिर बीच में पॉज लिए जा रहे हैं, फिर उसको एडिट कर रहे हैं, और ऐसे फोन टिका रखा है बुक्स के साथ, बट बना रहे हैं वीडियो, मजा आ रहा है तो बनाओ, क्या दिक्कत है। इतना Hmm. परफेक्शन के लिए लोग रुकते हैं ना कि भाई जब मेरे पास ना पूरा ऐसे स्टूडियो हो जाएगा, ग्रे वॉल होगी, और क्या नाम है, एक टेबल होगी और पॉडकास्ट माइक होगा, मैं तभी बनाऊंगा। क्या पॉइंट है, टाइम निकल जाएगा। फिर तो सारे resources मिल गए ना. हम्म। After, like that, if you wait for that, फिर तो सारे resources मिल गए. After तब वो resources आए तब तक की wait करना. एग्जैक्टली, वही. रिसोर्स वही है ना। तो कंप्लीट नॉलेज कभी इस चीज की आपको आ सकती है ना, सारे रिसोर्सेज आपके पास हो सकते हैं, आपके पास हजार एक्सक्यूज हो सकते हैं किसी चीज को ना करने के, एक एक रीजन चाहिए करने के लिए, दैट्स Yeah. Okay, we'll talk more about your YouTube journey. Like, why did you begin your YouTube and what have you learned through that? Uh, I I didn't begin YouTube with any particular purpose. मेरे को बचपन से ही वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं पहले बचपन में I used to play this game Boom Beach. तो I used to create
स्क्रीन रिकॉर्ड दिस। Oh. पहले जब मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला, इट वाज समथिंग न्यू। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया, ओह दिस इज हाउ इट इज डन। पहले मुझे लगता था जो नेट पे ऐसे गेम प्ले वीडियोस होते हैं, दोज आर लाइक कोई कैमरा को बहुत इधर हाँ फोकस करके रख देता है एंड देन दे शूट। बट देन आई लर्नड अबाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्कूल में एक दोस्त ने बताया, तो आई स्टार्टेड लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोज गेमिंग लाइक वीडियोस एंड देन पोस्ट देम। फिर उसके बाद आई गॉट इनटू क्यूबिंग। सो रूबिक्स क्यूब के जो मैं बहुत सारे चैनल्स देखता था, बाहर के क्रिएटर्स होते थे पहले तो मोस्टली, तो मैंने भी क्यूबिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालने शुरू किए, जो कि बहुत बहुत ही वियर्ड होते थे, बहुत ज़्यादा। और उसमें मैं बहुत ही नकली एक्सेंट के अंदर बोल रहा होता था। और मेरा कैमरा, मैं क्लिप्स होती है ना कपड़े सुखाने की, उससे मैं हाँ। अपने बैग पे अटैच करता था और वो Oh. एकदम से गिर जाता था, फिर वीडियो के बीच में मैं उसको रखता था, और उस समय एडिटिंग भी नहीं होती थी। तो मैं हाँ ऐसे ही रॉ वीडियोस डाल देता था एकदम, और पीछे से एकदम कभी मम्मी आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही चलता था। फिर इस तरह से मैंने वीडियोस डाली, फिर मैंने थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी करनी स्टार्ट करी। एंड उसके बाद मतलब फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे, हाँ फिर मैंने टैंक की ऑनलाइन खेलना शुरू करा, उसके वीडियोस डाले थोड़े बहुत। बट फिर मैं पढ़ाई वगैरह करने लग गया था। 10th 11th 12th में मैंने वीडियोस नहीं डाली कोई, 11th 12th में मोस्टली। उस समय तो पूरी तरह जेई पे ही था। बट फिर मैंने एक चीज देखी, जब हम लॉकडाउन वाले पीरियड में थे, तो मैंने बहुत यूट्यूब देखा बिकॉज ऑफ हम्म, द जेई थिंग। एक तो अनसर्टेनिटी वाली चीज थी, और इतने सारे क्रिएटर्स, मतलब आप एक वीडियो अगर देख लो उससे रिलेटेड, तो आपको बहुत सारे सजेशंस आते ही रहते हैं। तब अमन दत्तरवाल भैया का चैनल, आई आई कांट लाई, उनका चैनल जब देखा और उनकी वीडियोस देखी, एंड आई सॉ कि वो किस तरह से बोलते हैं, काफी कैरिज्मेटिक लाइक पर्सनालिटी थी। एंड ऐसा लगा कि यार क्या, मैं उस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे सर्च किया करता था कि टॉपिक्स टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2020 या फिर 2019, इस तरह की चीजें। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं हर हफ्ते फोन खरीद के उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं। और इवन अगर मैं बात कोई भी फोन सही है। खरीदता हूँ, इवन अगर कोई फोन खरीदता हूँ, मैं तो जब खरीदता हूँ जब 6-7 महीने पुराना हो गया होता है, और वो भी 2-3 साल में कभी एक बार फोन आता था घर में। हम्म, तो मेरे को समझ नहीं आता था क्या किया जाए। उस समय टेक बहुत चल रहा है, टेक चैनल्स हाँ बहुत बूम कर रहे थे, जियो वाला फेज था। या तो फिर मैंने सोचा कि यार भैया पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हमें भी यही आता है, बस पढ़ाई ही आती है, और आता क्या है। तो मैंने सोचा हम भी इसी के बारे में बना देंगे। डिफरेंट ये होगा बस, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का काफी बिगड़ गया था, जनवरी वाला। तो मैंने यही सोच रखा था कि मुझे जेई का सेकंड अटेम्प्ट इसलिए अच्छा करना है क्योंकि मुझे फर्स्ट डे एट आईआईटी शूट करना है। मुझे माय जर्नी फ्रॉम इतना इतना 90 मार्क्स टू इतना शूट करना है, ये सब शूट करना है, इसलिए मुझे एक जेई अच्छा करना है। हाँ, यू हैड Otherwise, गॉटन तो आईआईटी खड़गपुर ना, आईआईटी खड़गपुर मिली थी। या आई गॉट आईआईटी खड़गपुर में माइनिंग और समथिंग लाइक या दैट। और जैसे मतलब जो भी आईआईटीज मिले थे यही सब हम्म, ऑप्शंस थे, तो इतना इंटरेस्ट किया नहीं मुझे उस समय जाना। अब फील होता है शायद शायद चले जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि वो अच्छा होता है या बुरा होता है, वट एवर। क्योंकि ये सोचा था यहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा बेटर होगी, बट वो तो हो नहीं रही। हाँ आई फील कि मुझे आई माई एम टू कम टू यूट्यूब वाज कि मुझे क्राउड अच्छा चाहिए था, आई वांटेड टू कम टू अ गुड क्राउड। यस। तो वहां पे हाँ यार ये होता है आईआईटीज में ना, कई कई जगह तो बहुत अच्छा क्राउड होता है। मोस्टली मैं या कहूंगा आप ऊपर की ब्रांचेस में बहुत अच्छा क्राउड होता है, पर नीचे की ब्रांचेस में लाइक तुम बर्बाद हो जाओगे मोस्टली। हाँ अगर तुम मतलब में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा गोल नहीं है और फोकस्ड नहीं हो, तो फिर मोस्टली ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ ब्रांचेस फाइन, या ब्रांच में शायद अगर ना हो, बट अगर कॉलेज में भी है ना अच्छा क्राउड, यू कैन गो एंड मिंगल विद द गुड क्राउड। बट या वो मुझे रेडियो में उतना नहीं दिखता। लाइक सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग कंटेंट, I don't find anyone who's interested in creating content on my level, like neither the third year nor fourth year यस nor below. एग्जैक्टली, थर्ड फोर्थ ईयर में आके आई हैव सीन पीपल जिनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एंड मैंने ये भी देखा है कि लोग पता नहीं क्यों फालतू में चिढ़ते हैं इस चीज से, कि भाई एज इफ तुम कोई ऐसी चीज कर रहे हो। आई हैव सीन पीपल जो अप्रेज करते हैं, बहुत ज्यादा अप्रेज करते हैं, बट मैंने अपनी क्लास के अंदर बच्चों को देखा है, अब मुझे फील होता है कि वो चिढ़ना नहीं है, वो एक्चुअली एक लॉन्गिंग है उनके अंदर भी टू डू द सेम थिंग, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। दैट्स व्हाई वही दे विल कॉल यू आउट या कुछ भी ऐसे। तो मेरे को उस चीज से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज आई हैव मोर अप्रिशिएटर्स देन सच पीपल जो कुछ बोले, एंड इवेंचुअली दे स्टॉप, यू नो इट। ठीक है, तो आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देम, जो भी वट एवर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो मुझे उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट या
यहाँ पे क्राउड का ये तो है, इफ यू वांट टू क्रिएट कंटेंट, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो ऐसे ना, Out of the box, if you're standing out of the box, people see you with different eyes. या दे I विल। gotcha. हाँ, डीटीयू में कुछ चीज़ों के लिए यू हैव वेरी गुड क्राउड, अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है या Yeah, फिर सोसाइटीज़ वगैरह में इन जनरल काम करने के लिए बहुत yeah, अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए इट कुड बी बेटर। yeah. Yeah, like you एट mentioned, लीस्ट, Siama या was a एट लीस्ट Mediti, फॉर, yeah. या एट लीस्ट फॉर सच मेन स्ट्रीम चीज़ें, जैसे कि अब क्रिएटिंग कंटेंट इज़ नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग कि पूरे कॉलेज में कोई एक बंदा कर रहा हो। हाँ, बहुत लोग कर रहे होते हैं, बहुत लोगों का मन होता है, आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो फिर एट लीस्ट उससे रिलेटेड एक अच्छा क्राउड होना ही चाहिए, एट लीस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सोसाइटी, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। yeah. Okay. Yeah, more about your YouTube thing. Anything else you want to add? हाँ, Why aren't you continuing right now? Is it like because you, मतलब time manage करने में या उसमें problem आ रही है? Continue. Why aren't you continuing it? अभी आई एम नॉट कंटिन्यूइंग बिकॉज़ आई फ़ील कि ना एक बार ना वही वाली चीज़ होती है, मैं खुद से ना, मेरे को डिसीजंस लेने होते हैं कुछ चीज़ के, और फिर मैं उन डिसीजंस को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ना जैसे मैं यूट्यूब छोड़ ही नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम तक। आई वुड क्रिएट वीडियो, मेरे को कोई भी मैसेज आ जाता था, फिर मेरा मन करता था डाल देता हूँ, डाल देता हूँ, डाल देता हूँ। Hmm. मुझे ये था कि मैं ना पूरी तरह से फ़ोकस करूँ एक ही चीज़ पे, व्हिच वाज़ कि मैं प्लेसमेंट वगैरह ये सब पे फ़ोकस करूँ, मैं यूट्यूब को उस टाइम छोड़ ही दूँ। और मैंने वो डिसीज़न लिया, और मुझे ऑनेस्टली लगता है वो डिसीज़न गलत ही था। आप ना किसी भी चीज़ को पूरी तरह मत ही छोड़ो, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपने करी है, उसको टाइम दिया है, कहीं पे पहुँचे हो, कुछ छोड़ने से ना ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक चीज़ छोड़ी है तो दूसरी चीज़ अच्छी हो जाएगी। सेम गोज़ विथ माय जिम एंड एवरीथिंग, कि मैंने जिम छोड़ दिया था पूरी तरह, सब कुछ छोड़ दिया, ये सोच के कि भई मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा कोडिंग में। कुछ नहीं हुआ, आई गॉट इवन वर्स। मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, एटलीस्ट जिम की वज़ह से मुझे पता होता था कि मुझे शाम को 2 घंटे के लिए जाना है, तो मैं पहले से इतना पढ़ लूँ, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम होगा तो मैं ये कर लूँगा। पर अब वो चीज़ बेकार हो गई। मल्टीटास्किंग खराब चीज़ होती है, मुझे पता है, ऑब्सेशन एक चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, मुझे पता है वो सारी चीज़ें। पर ऑब्सेशन जब क्रिएट ही नहीं हुआ अभी, आप टाइम तो दो। आप सुबह उठो, सबसे पहला काम करोगे 4-5 घंटे करो पढ़ाई। उसके बाद अगर आपका मन करेगा आप शाम को जिम स्किप कर दोगे, आप पूरा दिन करते रहोगे पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये कर लो कि भाई शाम की जिम थी, सुबह भी कुछ नहीं करा और छोड़ भी दी कि जिम नहीं जा रहे, गंदा खा रहे हो, अपनी मर्ज़ी का खा रहे हो, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो चीज़ खराब है। और वही सोच के शायद थोड़ा-सा यूट्यूब छोड़ा था कि भाई मैं सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी थी बेसिकली लाइफ़ से, कि भाई सब कुछ इंस्टाग्राम, वही वी हैव कम बैक टू स्क्वायर वन, कि अभी इंस्टाग्राम छोड़ दूँगा, ये छोड़ दूँगा, फिर तो मैं पढ़ने ही लग जाऊँगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड टाइम आपको जब वेस्ट करना होता है, आप करते ही हो पूरा-पूरा। अभी भी मैच आता है, आप मैच लगा लेते हो, पूरा दिन देखते रहते हो, तो क्या हुआ? फ़र्क क्या पड़ा? आपने कंटेंट भी क्रिएट भी नहीं करा, कंज़्यूम ही कंज़्यूम करा, प्रोड्यूस कुछ करा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। Hmm. And I think JE content के साथ you could have posted other content as well, no? क्योंकि I feel कि what you did is you focused a lot on JE space only. So you had grown up, okay, from that space, but still Yeah, you were creating content about the same whole thing. yeah. I feel The that's thing one was, place improvement हो सकती I थी. was stuck, I was stuck in my comfort zone. I हाँ. cannot lie. I was stuck in my comfort zone. I was stuck back कि मेरे को फिर से, अगर वही ये होता था कि भाई अब कंसिस्टेंसी भी रखनी है थोड़ी सी, और कुछ आ भी नहीं रहा, एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करने का मन कर रहा, आप कुछ कर भी नहीं रहे ज़्यादा। मान लो कहीं से कोई स्पॉन्सर आ गया, जो जेई वाले स्पॉन्सर्स आते थे मोस्टली, तो Hmm. मैं उसमें क्या झूठ बोलूँ कि आप फिर दोबारा वही चीज़ें बनाते हो। वो चीज़ मुझे इंटरेस्ट भी नहीं करती, पता है एनी मोर। द ओनली Yeah. थिंग आई एंजॉयड वही अबाउट माइंड यूट्यूब ग्रो कर नाउ, देता है ना उसके बाद एंड देन फिर ऑटोमेटिकली बोरिंग लगता है. इट्स लाइक अब नहीं करना मुझे भाई, ये वाला पार्ट. हाँ, तो वन ऑफ द रीज़न्स कि ये छोड़ने का भी यही रीज़न था कि भाई अगर प्लेस हो जाओगे अच्छा, जैसे हो जाओगे, जैसे कि जेईई के टाइम पे था कि भाई जेईई हम्म. में कोई अचीवमेंट होगी, इंडिया में वैलिडेशन चलती है। आप अगर हाँ. आईआईटी से हो, आपका चैनल चल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप कोई अच्छी प्लेसमेंट कर चुके हो या कुछ अच्छा कर चुके हो, आप इससे रिलेटेड कंटेंट बना लोगे, वो चल जाएगा, राइट. ठीक है? तो ये एक रीज़न था ही, एंड देन ऑल्सो आई ओनली एन्जॉयड वीडियो एडिटिंग एट एट दैट टाइम, कि उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं था यूट्यूब के बारे में ज़्यादा, तो मैं वो चीज़ कर रहा था। एंड देन आई वाज स्टक इन माय कंफर्ट जोन, बाहर निकल के उस चीज़ से नहीं बना रहा था कंटेंट। मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है इस वक़्त टू डू समथिंग। बट या, वेरी गुड. अच्छी बात है. आई फील रियली गुड टॉकिंग अबाउट इट, कि क्या होता है ना, यू हैव दीज़ वॉइसेस इन योर हेड बट यू डोंट टॉक अबाउट You इट। you should have someone with whom you could
talk about it. you live in denial, it is not comfortable हाँ for you to talk about it ऐसे, क्योंकि हाँ वो चीज आपको अंदर से, वही डेविड गॉगिंस वाली चीज है ये, he used to fight his fears, he exactly. used to fight his fears. You need to have that accountability mirror. Yeah. आपको जवाब देना है, अगर कोई चीज नहीं करी है ना, डोंट कीप रनिंग फ्रॉम इट, कि भाई ऐसा होता है ना, एक एग्जांपल कि भाई किसी दोस्त ने, आपने आपने किसी दोस्त से पैसे लिए, ठीक है, एक दो बार उसने मांगे, आप टालते गए, ना तो वो देने वाला भूलता, ना आपने लिए हैं आप ये चीज भूलते, एक पॉइंट आता है शायद वो मांगना ही छोड़ दे, तो आप ऐसे रिलीव्ड हो जाते हो कि वो सामने आया, उसने मांगा भी नहीं, आप रिलीव्ड हो गए, भाई ये तो भूल गया। भूलता कोई नहीं है, ही जस्ट गिव अप ऑन आस्किंग यू फॉर दैट। आपको लगता है वो भूल गया, बस मेरा भी हो गया सही, मैं भी नहीं दूंगा, ये वाली चीज होती है, तो वो चीज ठीक नहीं है। द अदर पर्सन ऑल्सो नोस, यू ऑल्सो नो, आपका like good fortune you are collecting for yourself, same way में you are collecting achievements for yourself, ठीक है, तो वो कुकी जार ऑफ डेविड गोविंद, अचीवमेंट कुकी, ठीक है, तो अच्छा। यू आर लाइक, आपको खुद के लिए अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं भी यहाँ पे करता हूँ कि इट वाज कंप्लीटली गेटिंग स्टक इन द कंफर्ट जोन, इट वाज नॉट ट्राइंग टू यू नो, वही वाली चीज होती थी ना, कि ये भी लगता था कि अगर मैं कुछ नया डालूंगा तो व्यूज नहीं आएंगे, हाँ बीच में इनिशियली चीजें नहीं ट्राई आएंगे, करी उसके थी, बाद आ जाएंगे। बीच में चीजें ट्राई करी थी, हाँ इफ यू हैव सीन द चैनल, कि मैं कोशिश करता था थोड़ा हटके, इससे भी हटके वीडियोस मतलब आई बनाने सीन का। ना हटके एडिटिंग वाले वीडियोस एक दो, बट फिर क्योंकि जेई वाले वीडियोस होते थे ना इनिशियली, जब मैं भी जेई फेस में था आई यूज्ड टू फॉलो योर वीडियोस, बट एक बार मैं हम्म, कॉलेज में आ गया उसके बाद इट मेड नो सेंस टू फॉलो, यू नो, मैंने सजेस्ट किया था माय यंगर ऑब्वियसली, ब्रदर। ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस ऐसी थी भी नहीं कि मैं एक दो साल से ज्यादा रिटेन करूं, हाँ क्योंकि जेई में ये है ना, इन द जेई स्पेस हर साल ऐसे तो कोचिंग्स चलेंगी ही नहीं, वही। अगर देखा जाए कि उनके एक ही बच्चों से अगर हाँ रिटर्न प्रॉफिट, आते रहे तो। वही तो उनको तो जेई ही पढ़ाना है, हर साल नए बच्चे हम्म आएंगे, वही चीज पढ़ाएंगे, वो कुछ हम्म नया भी नहीं पढ़ाएंगे, जो वो हर साल पढ़ाते हैं वही पढ़ाएंगे, हर साल नए बच्चे आएंगे, उनको पैसे देंगे, चले जाएंगे। या सेम फॉर ऐसे जेई वाले स्पेस में कंटेंट का, कि आप सेम चीज हर साल बनाओगे, हर साल नए बच्चे आएंगे, नई वीडियो ही देखेंगे, पुरानी वीडियो कोई देखता नहीं है, क्योंकि हाँ वीडियो की लाइफ होती है, आप फिर से कुछ नया बनाते हो, हल्का कुछ डिफरेंट करते हो, ऐड करते हो, एंड वो वीडियो भी चल जाती है। या आप बोलो, पीछे से रिलेटिव्स। आ रहा था, हाँ थोड़ा सा शोर आ रहा था, तो आई जस्ट म्यूटेड। ओ नो वरीज। यू कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। राइट वही वो साइकिल बन जाती है कि कंफर्ट है और उसी में आप बना देते हैं। यू फील यू विल बनाओगे इसके बाद आफ्टर यू गेट प्लेस्ड अराउंड टेक स्पेस यूट्यूब वीडियोस। डेफिनेटली आई थिंक कि मेरे को वेट भी नहीं करना चाहिए टू गेट प्लेस्ड, आई शुड बी मेकिंग समथिंग, आई हाँ शुड बी जर्नी थिंकिंग वीडियो अबाउट, बना सकते हो ना। एटलीस्ट मैं एक महीने में एक चीज डालूं, बट एटलीस्ट मैं डालूं। हाँ एंड प्लस इफ यू फाइंड एडिटिंग कंफर्टेबल और मज़ा आता है एडिटिंग करने में, देन इट्स फाइन। मुझे एडिटिंग थोड़ा सा टीडियस लगता है क्योंकि मेरा लैपटॉप भी आई थिंक स्लो है मे बी इसलिए। तो एडिटिंग करते रेंडरिंग में इतना टाइम लगता है, एडिट करने में इतना टाइम लगता है, हैंग होता है ये बीच भी बीच है, में। मेरा लैपटॉप भी है ऐसा, बट वही वाली चीज है कि द सेटिस्फैक्शन कि आप कुछ नया करते हो ना, फिर जब वो निकल के हाँ आती है वीडियो, तब मजा आता है ये बस। पॉडकास्ट में भी यही मजा आता है ना, टॉकिंग विद पीपल, इसमें ही मजा है। देन इट एग्जैक्ट, कॉम्पेंसेट्स, जो वो एडिटिंग का पेन है दैट दिस कॉम्पेंसेट्स दैट। या आई एम रियली सॉरी। नो वरीज नो तो वरीज। वही वाली चीज थी कि वही है, आई आई शुड नॉट बी थिंकिंग कि मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, ये बहुत हाँ वो वही डिलेड है, हो गया ना, फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली exactly. तो फिर वो बेकार ही है, इससे अच्छा है कि अभी जो मेरे हाथ में है ना उस पे काम कर लूं, श्योर। एटलीस्ट कुछ तो होगा अभी जिसके बारे में मैं कंटेंट बना सकता हूँ, इवन मैं अपनी प्लेसमेंट डिस्कस कर सकता हूँ, भाई क्या क्या चीजें, मैं जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, वो सारी चीजों के अराउंड में वीडियोस बना सकता हूँ। या चलो we've had a pretty good discussion. Is there anything else you want to add? Something else where you can feel? इसके अलावा आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ बच जाता है ना कॉलेज स्टूडेंट्स लाइफ, इट्स जस्ट दैट कि भाई बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, सिर्फ या अपनी फील्ड के लास्ट लोगों से मत, मैसेजेस की क्या होना चाहिए लोगों के लिए, कॉलेज भाई स्टूडेंट्स के लिए? सिर्फ सिर्फ अपनी फील्ड के लोगों से मत मिलो, हर किसी से मिलो, ठीक है, एंड हर किसी से जितना सीख सकते हो उतना सीखने की कोशिश करो, डरो मत यार, हर किसी ने कहीं ना कहीं से ही स्टार्ट करा होता है,
एंड ये सारी चीजें मेरे को लग रहा है मैं खुद को बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत जरूरी है सबके लिए भाई। एवरीबडी स्टार्टेड एट जीरो, कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया ही था, एंड इवेंचुअली दे गॉट बेटर। तो छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, यू विल पाइल अप द बिग अचीवमेंट्स। एंड that's it, that's all I wanted to say. And keep like don't say no to opportunities अपने आलस की वजह से। हो सकता था आज की ये पॉडकास्ट को मैं कल टाल देता बिकॉज आई वाज स्लीपिंग, Yes. बट आई सेड कि नहीं भाई, क्यों टालूं मैं? इवन आई शुड हैव डन इट ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ, व्हाई डिड आई वेट टिल सैटरडे? ये वाला एटीट्यूड रहेगा ना हमारे अंदर तो हम बहुत सही कर लेंगे, बहुत सारी चीजें अच्छी कर लेंगे। हु न्यू के मतलब ऐसे बात करके मेरे को वापस से कंटेंट क्रिएट करने का मन करेगा। आई एटलीस्ट मैं सोचूंगा उस बारे में, दैट्स द थिंग। So don't keep things waiting for you. Just do it. Just do it. Cool. Thank you so much, Manshu. बहुत ज़्यादा मज़ा आया बात करने में। Thank you, Aryan. Thank you. बहुत सारी learnings, बहुत सारे messages, inspirational quotes, inspirational messages. Thank you so much. Not my words, but Yeah, I mean you whatever. reiterated them. वो matter करता है ना? Yeah. At least I know that I learned. I Yeah. learned. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot for having me. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye.